हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। और इस बार हमारे साथ हैं मिस्टर गीग्राफर और सक्षम मिश्रा। ही इज Allahabad's one of the best photographers, I can easily say, and he's also a talent manager at a company called Gold Pillar Events. तो इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है फोटोग्राफी के बारे में, इवेंट मैनेजमेंट के बारे में, हमने ऑल्सो बात करी है हिप हॉप सीन के बारे में, क्योंकि वो और मैं दोनों ही हिप हॉप बहुत बड़े फैंस हैं। तो it's a very big hour long podcast, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें इसमें एंड बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा बिकॉज मुझे बहुत पसंद आया पॉडकास्ट में सक्षम से बात करके। विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, एंजॉय द पॉडकास्ट एंड ऑल्सो तुम इसको जहाँ भी सुन रहे हो या देख रहे हो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाने का प्लान है एंड आई होप यू लाइक इट. Welcome everybody to another episode of the podcast. Today we have Allahabad's star photographer, Mr. Giegrapher or Saksham Mishra. How are you? How are you? Thank you so much, man. I'm fine. Thank you for having me. And it's Giegrapher, not Greek. Giegrapher. No, I said I guess Giegrapher. Yeah, Giegrapher. तो पहले तो I'd like to know कि Giegrapher नाम की कहानी क्या है? Like it's a kind of unique name. So like genuinely कोई story नहीं है. I was finding a name for myself, like for my Insta username. Okay. And I was a kid, like it is about 5 years back. So मुझे बहुत मतलब I was into computer, laptop, and वो होता नहीं nerd वाली चीजें. I get this term geek, which I put together with the photographer, and it's Giegrapher. Okay. So so first of all, kindly introduce yourself, क्योंकि like most of the people know you, but just for the sake. So I'm from Allahabad, formerly Allahabad, now Prayagraj, and I do photography and I do event management also. So I'm a event photographer for a company, Gold Pillar Events. Okay. And that's all. Okay. So ये जो जर्नी है फोटोग्राफी की, आई गेस फोटोग्राफी से ही स्टार्ट हुई थी. तो ये स्टार्ट कैसे हुई? मतलब हम लोग को तो बचपन से सबको आदत होती है कि आसमान खोला नहीं कि हम सब फोटो खींचने लग जाते हैं. उसके आगे कैसे बढ़े कि नहीं अब तो कुछ करना है इस फील्ड में? तो around 5 years back, I went on a family trip to a national park, Bandhavgarh in MP. Okay. So मतलब उस समय मुझे मतलब एक रिलेटिव थे मेरे जो फोटोग्राफर थे. तो फिर मैं उनके फोन से धीरे धीरे 1-2 फोटो खींचे एंड आई फेल्ट कि ये मजेदार है कुछ. फिर एज एवरी बडिंग फोटोग्राफर आई स्टार्टेड क्लिकिंग फ्लावर्स विद द बैकग्राउंड एंड उसके बाद तो मुझे लगा बस मैं भगवान. बट उस समय होता है ऐसा, तो बस फिर उसी के बाद में पढ़ता चला गया, पसंद आने लगा करना. So what is your age right now? कब से स्टार्ट हुआ था ये guess? Right now I'm 18. 18. I started this around 14 when I was 14. Okay. So like the 4 or 5 years that you've been in this, is it all self-learned or did you take some courses or anything? I took few workshops and luckily from my inspiration to the photographer whom I follow, Tushar Mahajan. Okay. So I took his few workshops, that's all. Okay, so most of it is self-learned over the 5 years of your life. And as you said, the first equipment you ever used was your uncle's phone. But even after that, till when did you do only with phone and like आपने कैमरा कब लिया प्रोफेशनल? नहीं, कैमरा तो मैंने भाई लास्ट ईयर लिया था, वो भी आई ब्रोक इट. अच्छा. उसके पहले तक आई वाज डूइंग इवेंट्स एंड आई यूज्ड टू टेक कैमरा ऑन रेंट फ्रॉम पीपल. Okay. So first DSLR I used, it was D3300 from Nikon. Okay. So अब जैसे as you said कि you mostly do your photography by mobile, even like मैंने आपकी Insta भी देखा है, it's almost all of it is mobile. So I'd like you to guide my audience through the mobile photography, because most of us here don't own an DSLR. my बाप के पास उतना पैसा नहीं है मतलब but है भी तो दिलाता नहीं है. But yeah, like करना है तो अच्छी aesthetic type की फोटो खींचनी Instagram के लिए, तो कैसे करें? तो if you see my Instagram, it is fully loaded with mobile photography because मेरा ये मानना है DSLR मैं commercial work के लिए use करता हूँ, but उसके पहले and like you can't carry a DSLR every time you go out. Yeah, and ugly. As I do street photography, तो आपको कहीं पे भी फ्रेम मिल सकता है, तो फोन से अच्छा इक्विपमेंट कोई नहीं है इस समय. एक बेसिक फोन आपका प्यारा कैमरा प्रोवाइड करता है जो इनफ है.
तो बस फ्रेमिंग और टाइमिंग, ये दो चीजें हैं जो फोन फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी। या सब जैसे आई लाइक ये OnePlus 7T है तो इसका तो पोटेंशियल होगा फिर अच्छे से। काफी काफी अच्छा है हाँ, so थोड़ा like फोटोग्राफी उसमें। I'd like you to kindly elaborate on this कि framing और timing, how do you see, मतलब वो आँख कहाँ से लानी कि हाँ यहाँ फ्रेम अच्छा दिख रहा है and timing कैसी रखनी इट है। इज ऑल अबाउट लाइक ट्रिक होती है मोबाइल फोटोग्राफी में बहुत सी, जैसे इफ आई वांट टू क्लिक अ इनोवेटिव फोटो ऑफ दिस वाटर बॉटल, हाँ, ओके एक नॉर्मल इंसान इसको ऐसे लेगा एंड ही विल क्लिक, बट आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है तो यू विल जस्ट डू वन थिंग कि एक दूसरे से आपने फ्लैश जलाया, उसको नीचे रखा इसके, एंड फिर दूसरे ओके फोन में इसमें बबल जो फॉर्म हो गए उसमें यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन बाय एक्सटर्नल लेंस फॉर लाइक 200 रुपीस। या वो these are मैक्रो very आते हैं cheap एंड फिश आई and very good या लाइक माइक्रो आई यूज शॉट इन के सब। लिए लाइक। हाँ हाँ, तो इट इज वेरी नाइस एंड आपको मतलब सीखना पड़ेगा, लाइक ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोर्स चाहिए, कुछ नहीं, बस यूट्यूब पे बैठो, आप पढ़ो इसके बारे में, लाइक कि तो ऐसे तो हाँ फोटोग्राफी टर्म में ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि सब नहीं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बट लाइक इफ आपको एक फ्रेम अच्छा लग रहा है आप हाँ लाइक ऐसा नहीं कि पहली बार एक ट्राई किया नहीं आया छोड़ दिया, करते रहो जब तक आपका आपको मतलब आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो जाते उस फिल्म से। ओके अच्छा तो अब जैसे ये कैसे चूज करें कि व्हेन टू यूज योर ऑटो कैमरा एंड व्हेन टू यूज योर मैनुअल, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम सब फोन निकालते हैं ऑटो से फोटो खींच ली, बट हाँ एक तो तो सी मैनुअल कैमरा पे स्विच कब करना है एंड स्विच करके सबसे ज्यादा चीजों पे ध्यान किस पे रखना है मैनुअल कैमरा पे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग फॉर अ न्यूबी। आई गेट इट। सो ऑटो पे आपको तब रहना है जब आपने मतलब नहीं किया कोई शूट, आप निकले हो अपनी स्कूटी लेके, आपको कोई फ्रेम दिख गया, आपके पास टाइम नहीं कि आप मतलब एडजस्ट करो अपना मैनुअल, तब आप ऑटो पे लो ऑफ कोर्स। एंड फोन का ऑटो बहुत अच्छा होता है, बेटर देन कैमरा डीएसएलआर ऑटो जो या फोन का होता हाँ हाँ ऑटो है। एंड फोकस। उसके बाद फिर जब आप जैसे कोई प्लान करो शूट, जैसे आपने देखा होगा मेरा लास्ट पोस्ट था, एक कैमरा एक कार थी छोटी सी, हाँ 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 इफ हाँ यू हैव मैंने सीन माय देखा लास्ट था। पोस्ट में। हाँ, या हाँ तो उसके लिए जैसे मैंने पूरी प्लानिंग की थी, हम मुझे ये फोटो लेनी है, मुझे ऐसी फोटो बनानी है, हम्म तब आप उसको मैनुअल पे, और मैनुअल में इफ फोन से आप खींच रहे हो तो इट इज ऑल अबाउट आप कैसी फोटो ले रहे हो। इफ बहुत ज्यादा लाइट में ले रहे हो तो आपको अपर्चर के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। एंड फोन के शटर स्पीड में एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है, वो आपको अच्छी वो मतलब ट्रेल लाइट देता है। कभी भी आप हम्म देखना जो फोन फोटोग्राफी होती है उसमें ट्रेल लाइट बहुत प्यारी हाँ आती है। हाँ हाँ तो इफ आप जैसे बाहर निकले हो, आप किसी ब्रिज पे हो एंड यू वांट टू क्लिक दैट फोटो की ट्रेल लाइट आए हाँ कार की, या हाँ तो हाँ तब आप शटर उसको लो कर सकते हो। हाँ दैट इज लाइक उसको लाइक फॉर माय ट्राइपॉड पे लास्ट रख के। फोटो, हाँ प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ ऑफ कोर्स यू हैव टू बी स्टेबल, इफ वो थोड़ा हाँ सा भी हिलेगा योर फोटो विल गेट रूइंड। हाँ वो एंड पूरी। ऑल्सो इफ यू हाँ लाइक, इफ यू सी माय लास्ट पोस्ट, उसमें लाइक जो बैकग्राउंड है वो बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया है, एक लैपटॉप लिया है, बैकग्राउंड पे एक ट्रिपी सी फोटो डाली है, हाँ उसके ऊपर एक कार रखी है एक किसी भी सपोर्ट के साथ, मैं क्लिक हाँ इट। क्या आधे लोग उसमें ये नहीं समझ पा रहे वो बैकग्राउंड कहाँ से आया, सब बोले फोटोशॉप है। हाँ या हाँ वो, बट हाँ वो बहुत इजी इजी ट्रिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रात में फोटो खींचनी है अपने फेस की, सो यू कुड यूज अ फोन जिसकी ऑफ लाइट कोर्स यू आप, कैन, हाँ मतलब एज इन लाइक एक अलग से कि अपने हाथ में फोन पकड़ लाइक लिया राइट लाइटिंग नाउ बचाने के टॉकिंग लिए। टू यू, हाँ, और हाँ इस रूम में इतना लाइट सोर्स नहीं है मेरे पास, तो मेरे फोन के जस्ट पीछे एक लैपटॉप है जिससे व्हाइट स्क्रीन खुली रखी है, इफ यू हाँ कैन सी दिस इन माय स्पेक्स। हाँ हाँ तो ये आई बहुत कैन। नॉर्मल सी बेसिक चीज है जो आप डेली लाइफ में सीखते हो कि लाइट, हाँ जरूरी नहीं पूरे कमरे में लाइट हो, बट जहां पे हाँ आपको फोकस चाहिए वहां लाइट लाओ। हाँ हाँ और हाँ थोड़ी सॉफ्ट लाइटिंग भी चाहिए होती है। हार्श लाइटिंग विल लाइक ruin योर फेस एंड ऑल। बर्न हो जाता है काफी ज्यादा। हाँ सो लाइक यू तो टॉक्ड अबाउट कि लोग कह रहे हैं फोटोशॉप है, तो डू यू बिलीव कि जो फोटोज एडिट करते हैं लोग दे आर लाइक डूइंग इट रॉन्ग, मतलब कुछ लोग कहते हैं नो, कि नहीं रॉ फोटोज हो नहीं, तभी अच्छी होती हैं। फोटोज एडिट करना बिल्कुल गलत नहीं, ये मतलब जो लोग बोलते हैं मुझे वो समझ नहीं आता, क्योंकि आप जितने भी बड़े फोटोग्राफर को देख लो, बीट एनीवन फ्रॉम डब्बू रत्नानी टू एनीवन, सब फोटोशॉप यूज करेंगे बिकॉज देखो, इफ आप फोटोशॉप का गलत यूज कर दो कि जो चीज है नहीं वो बना रहे हो, वो तो गलत है।
हाँ बट इफ आप फोटोशॉप को ऐसा यूज कर रहे हो कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग इमेज है उसको एनहांस कर रहे हो, देन इट इज नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। या सो लाइक आप मोस्टली मोबाइल पे एडिट करते हो कि मतलब I do it फोटोशॉप on पे? both. Like if I'm editing on phone, so I will use Snapseed. हाँ So अभी जो भी सुन रहा है तो Snapseed is one of the best editing app on phone I've ever come across. Like बहुत प्यारा ऐप है भाई. You can find everything on this छोटू सा app. या And मैं भी if वही I'm यूज doing करता like हूँ। some commercial stuff like for any client, then I will do Photoshop. हाँ लाइक दैट इज वो अलग लेवल का वो आ जाता है उसमें वो अलग प्रोफेशनलिज्म, हो क्योंकि जाता है, वहां पे आपको दैट इज वो पैसे मिलते बहुत वास्ट होता है एंड उसमें बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। हैं, तो या चॉइसेस होते हैं, वहां पे आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, सबसे हाँ बड़ी चीज। मतलब आप वहाँ लेजी लेजी वर्क नहीं कर सकते, आप यू हैव टू डू डेजी योर वर्क, बेस्ट। भाई वो बंदा पैसे दे रहा है आपको, हाँ ही इज पैसे दे पेइंग रहा यू है, फॉर दिस, ही इज ऑफ पेइंग कोर्स। यू ऑफ कोर्स। एक आपको एक कैमरा लेके फोटो खींचने के पैसे दे रहा है वो, तो यू लाइक यू विल प्रॉमिस हिम द बेस्ट वर्क। नाउ हाँ जैसे लाइक यू सेड कि आपने मोस्टली मोबाइल से फोटोग्राफी करी है, बट यू हैव अपग्रेडेड योर स्टफ। यस, सो हाउ वाज इट हाँ। लाइक कि पहला अपग्रेड क्या हुआ था, देन उसके बाद, क्योंकि अब पहला धीरे धीरे आपको लाइक मेरे फोटोग्राफी लाइफ में में मेजर इक्विपमेंट बढ़ाना अपग्रेड होता है। जो होगा, तो हाँ। आई यूज्ड टू, जब मैं लाइक आई डिड माय फर्स्ट शो, इट वाज अ बिग ह्यूज शो फॉर मी, इट वाज विद बादशाह बैक इन ओके 2016 फॉर अ ओके बर्डिंग किड लाइक मी, जिसके पास हाथ में एक डीएसएलआर है, वो भी 3300, बहुत ही बेसिक कैमरा। उसमें से आई गॉट फ्यू शॉट जो बादशाह ने अपलोड कर दिया अपने इंस्टा पे, ओ हाँ, विद द क्रेडिट्स। तो वहां से थोड़ा सा बूस्ट मिला कि नहीं, इसमें करना चाहिए, लाइक अप्रिशिएशन मिलती है तो आपको लगता है कि यू कैन गो ऑन। तो मेरा मेजर अपडेट होगा जब आई स्टार्टेड यूजिंग फुल लेंथ कैमरा, लाइक अभी तक तो ये 33 34 पे था, फिर आई अपडेटेड माय सेल्फ टू 80D कैनन। ओके वो काफी अच्छा था, और अपग्रेड जरूरी होता है। जैसे अभी आई एम थिंकिंग कि अब मिररलेस कैमरा आ गए हैं, तो डीएसएलआर की मार्केट कम होती है, ओके। तो लाइक मतलब यू, मुझे थोड़ा कम समझ में आया ये डीएसएलआर और मिररलेस, इसमें फर्क क्या होता हाँ है, इमेज क्वालिटी फाइन, में, देन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं, और आई यूजेबिलिटी विल में, लेट यू व्हाट इज नो, द आई लेट यू डिफरेंस? नो। हाँ, तो डीएसएलआर जैसे मतलब डीएसएलआर में क्या होता है, जब आपने कभी भी डीएसएलआर देखा हो तो उसके आप लेंस हटाओ तो अंदर एक मिरर होता है। हाँ हाँ, तो डीएसएलआर आपकी फोटो कैसे लेता है कि रिफ्लेक्शन उस मिरर पे आती है, उससे ऊपर सेंसर पे आती है, तब आप बटन दबाते हो, तब वो ओके आती पूरी इमेज बनती है। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने मिरर हटा दिया, तो जो फोटो है वो डायरेक्ट जा रही है सेंसर को। सो इट इज सेविंग अ सेकेंड और नैनो सेकेंड, विच इज अ बिग डील फॉर अ फोटोग्राफर, हाँ लाइक सीन चेंज हो जाता वेरी है। बिग डील, कि मतलब लाइक हाँ पूरा आधे सेकंड में आपकी जिंदगी का बेस्ट शॉट चला जाता है। हाँ हाँ एंड जो डीएसएलआर था उसमें जैसे इमेज मिरर पे आती थी, फिर आपका जो व्यू फाइंडर होता है जिससे आप देखते हो, उसमें यू कांट सी लाइक जो एक्चुअल इमेज होगी वो नहीं दिखती, उसमें से आपको दिखता है कि सामने क्या है। बट जो मिरर लेस आए हैं उसमें क्या है, उसमें मिरर है ही नहीं, तो उसमें सेंसर जो आपकी सेटिंग होगी, इफ आपकी सेटिंग होगी आपका एसओ एकदम मतलब कम होगा, तो आपको एकदम अंधेरा उस व्यू फाइंडर में दिखेगा, तो वो आपकी सेटिंग के हिसाब से उसमें दिखाता है, विच इज अ ओके वेरी नाइस थिंग फॉर अस। ओके। एंड मिररलेस और डीएसएलआर में फिर वो प्राइस डिफरेंस भी आ जाएगा कि? ज्यादा नहीं, जैसे कैनन ने अपना पहला मिररलेस जो निकाला वो काफी सस्ता निकाला, इट इज लाइक 54,000। हम्म। बट वहीं पे सोनी जिन्होंने ये स्टार्ट किया मिररलेस का, वो निकाल दी है उनकी जो सबसे सक्सेसफुल सीरीज है, इट इज ए आर सीरीज, AR7 III AR ऐसे करके काफी हाँ कैमरा है। तो उस उनकी सीरीज जो है वो पूरी मिररलेस है, ओके एंड बहुत प्यारी सीरीज है वो, लाइक वो सबका एक होता नहीं ड्रीम कैमरा, तो उनमें से है वो मेरा। हाँ। सोनी का तो मुझे लगता है कि वो मोबाइल छोड़ के बाकी सब अच्छा बना लेते हैं। पॉइंट है। मोबाइल कोई यूज नहीं करता, बट कैमराज में वो काफी ब्राविया उनका काफी बिकता है। एंड कैमराज सोनी के इज लाइक वो जैसे आपने कहा ड्रीम होता है ओजी वो लेवल सबका। होते हैं वो भाई, हाँ वो दैट एक लाइक सोनी, और बहुत से लोग नहीं जानते, सबसे ओजी कंपनी जो मुझे लगती है वो फूजी फिल्म्स। बहुत से ओके लोग उसको समझते हैं कि वो उतनी अच्छी कंपनी नहीं है और ये कैनन एंड नाइकन आ गए, बट वो भाई उनका लेवल अलग है। आप सोच लो, इंडिया बिगेस्ट फैशन फोटोग्राफर डब्बू रसानी, वो बंदा आज भी फूजी से खींचता है बंदा। लाइक आई मेट हिम लास्ट ईयर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस एंड ही वाज शोइंग मी, उसके पास आज भी वो फूजी कैमरा से यूज करता है। ओके नाइस। अच्छा इंडिया में लाइक फूजी की हाँ मार्केट अच्छी नहीं है, बट हाँ जी, या इंडिया में प्लीज प्लीज। फूजी की मार्केट उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, बट आउटसाइड इंडिया फूजी काफी अच्छा चलता है। ओह या ओके।
So जैसे like you said that you started as a photographer like as at the age of 14, but you know आपने काम थोड़ा बाद में ढूंढना शुरू हो गया होगा as a you know freelance. तो वहाँ पे what was the क्या difficulties क्या आई कि मतलब लोग मोस्टली लोग बच्चा समझ के रब ऑफ कर देते हैं कि यार ये क्या है, एक हाथ में फोन ही तो है इसके, या बहुत। फिर हाथ में एक बट छोटा सा देखो डीएसएलआर भाई, है, कैसे मेरा ये करेगा. मानना है, काम आपको, बहुत से लोग बोलते हैं वो इट्स ओके, उनका भी बनता है बोलना, क्योंकि वो क्लाइंट है यार, वो तुम पे अपने एक स्पेशल डे के लिए रिलाय कर रहा है, तो उसको श्योरिटी चाहिए। इसमें कुछ हम्म. गलत नहीं है उसका सोचना कि ये बच्चा क्या ही कर लेगा। हाँ. क्योंकि if मैं किसी एक इंसान को 10,000 रुपए दे रहा हूँ फोटो खींचने के, तो आई मेक श्योर कि हाँ. भाई उस बंदे के अंदर उतनी क्रेडिबिलिटी हो कि वो उतना अच्छा काम करे। Yes, totally agree. एंड आई स्टार्टेड, तो काम देखो, मेरा ये मानना है कि भाई लोग क्या होता है कि पेड पेड शूट होते हैं, बट मैंने स्टार्टिंग के 3 साल आई डिड अनपेड शूट। लाइक कोई भी इवेंट होता था बस मुझे घुसना रहता था, और फिर मैं अपने अपने लिए शूट करता हूँ, मैं दूसरे के लिए नहीं। मैं शूट करता गया, एक्सपीरियंस मिला उससे, आपको फील्ड में काम करने का, लाइक कैमरा चलाना और फील्ड में काम करना बहुत अलग चीज है। तो उसमें आप सीखते जाओगे, और जितना एक्सपीरियंस आएगा उतना बेटर आपका काम होता जाएगा, उतना पेशेंस आएगा आपके अंदर। So और do you हाँ please sorry, I'm sorry for interrupting. और Please continue. सोशल मीडिया इज अ मेजर की इन दिस। हम्म. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा भाई अपना इंस्टा बताओ आपका काम देखने के लिए। हाँ. तो Portfolio. आपको वहाँ इतना प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि उसको अट्रैक्ट करे वो चीज। Yes, totally agree. हाँ, पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका कि देखो मैंने ये सब कर रखा है, तब तब जाके आप मुझे हायर करो. लाइक अब वो वाला देखो, जनरेशन गैप होता है। पहले क्या होता था, फोटोग्राफर अपने पोर्टफोलियो बनाते थे, पूरी एक बुक होती थी, वो हाँ, क्लाइंट से मिलते थे। मैंने बट अब देखे हो मोस्टली कैटलॉग्स होते थे क्लाइंट क्या पूरे करते पूरे. हैं, भाई मेल कर दो। अब हाँ. क्या होता है, मेल कर दो, अब होता है हाँ. इंस्टा दिखाओ। इंस्टा पेज दो. तो अब बहुत सी चीजें डिजिटल मीडिया पे आ गई है। हाँ. एंड आई थिंक इट्स बेटर. मतलब पहले पोर्टफोलियो कंबाइन करने के लिए आपको पैसे वैसे देने पड़ते थे. अब तो काफी इट्स लाइक पैसे अपना पोर्टफोलियो. टाइम। हाँ. अब तो इट्स लाइक मैंने अपना फोटोज भी खींच ली, मैंने पोर्टफोलियो बना लिया, और मुझे सोशल मीडिया क्लाउड भी मिल गया, तो वो मुझे और काम ला के देगा फ्री में. तो दैट इज लाइक कि अलग ही लेवल का हो रहा है. तो डू यू रिमेम्बर कि कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा जो मेमोरेबल हो गया आपके अर्ली इयर्स में? डू यू हैव एनी स्टोरीज और एनीथिंग लाइक दैट फील्ड पे, या फिर किसी क्लाइंट के साथ कुछ इंटरेस्टिंग? किसी क्लाइंट के साथ, लाइक मेरा एक जूनियर है, तो आई डिड हिज फैमिली फंक्शन फॉर माई सेल्फ कि हाँ मैं शूट कर दूंगा तुम्हारे लिए, आई डू दिस ये वो। मैं गया, मैंने शूट किया, उसके बाद मैंने गॉट बैक, तो मुझे समझ आया कि कुछ भी सेव नहीं हुआ है, मेरा कार्ड करप्ट हो चुका है। ओ. एंड वो मुझे बताते हुए इतना वो हो रहा था उस बंदे को कि भाई नहीं हो पाया। वो बेचारा बहुत मुझे मैसेज कर रहा है, भैया फोटो भैया फोटो, ना देता हूँ मैं देता हूँ। तो ये सब चीजें होती है, तब से मैंने सीखा कि मतलब पहले से आप अपना श्योर सब होके चेक जाओ, करके चले. मतलब सारी चीजें चेक करो, डबल चेक करो। तब मैं बहुत तभी. ही मेच्योर टाइप का था, तब होता नहीं, नया नया जोश होता है हाँ. कि नया नया कि कैमरा है, कि भाई काम मिल काफी गया, ज्यादा चलो अब तो उठ जाते हैं. बस अब तो मेरे आगे दुनिया पूरी, ऐसा नहीं होता नहीं भाई। फिर भाई, जैसे ये इसलिए अपन सब ने एक, चीजें आपको हाँ, जैसे इसलिए अपन ने एक लाइक ट्रायल बहुत रन सी भी किया चीजें इसके हुई है। पहले पॉडकास्ट का. हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि क्योंकि चेक करने के लिए हाँ, आवाज आ क्योंकि रही मेरे साथ कैमरा है। क्योंकि मेरे साथ कितना क्या हुआ था, जब मैं पहले जब एकदम फर्स्ट एवर एपिसोड मैंने किया था ना रिकॉर्ड, स्टार्टिंग में वे में, तो मैंने अराउंड 1 घंटे का एपिसोड रिकॉर्ड किया, सेव करने गया, ऑडियो करप्ट. तो उसमें 1 घंटे की बर्बादी हो गई यार. तो तब से लाइक मैंने लाइक पहले वो मेरा सबसे टेस्ट रन होगा, उसके बाद कुछ होगा बस. हाँ. लाइक बहुत सी सही सही चीज होती है। लाइक एक फनी वो है, मतलब फनी मेरे लिए सरप्राइजिंग था इसी एक्सपीरियंस में। लाइक आई वाज शूटिंग विद बादशाह भाई, सब सही चल रहा है, मैं होटल गया उनके, मैं मिला उनसे, बैठा, बंदा बहुत मतलब कॉन्शियस हो रहा था, वो भी मतलब थोड़ा सा आपको उसकी उनकी तबीयत थोड़ी सी उस समय लो थी। एंड सडनली खाने की बारी आई, मुझे लगा ये बंदा कुछ ना कुछ अच्छा ऑर्डर करेगा, लाइक बड़ा कुछ मतलब होता होगा, ये सेलिब्रिटी हाँ है। मतलब कि बटर चिकन मंगा रहे हैं, बहुत कुछ मंगा धीरे रहे से बहुत हाँ बहुत धीरे से बोला, वो दाल चावल मिलेगा क्या अंकल चिप्स के साथ? हैं. एंड आई वाज ओके. लाइक हाँ श्योर, क्यों नहीं, मैं बोलता हूँ। क्यों अंकल चिप्स ब्लू वाला? मैंने बोला ब्रो ओके फाइन। मतलब उनके इनके लिए तो इट्स लाइक, भाई हाँ. बहुत सही बंदा है वो। मैंने तो देखा ना, जैसे मेरे भी. भाई ही इज, हाँ. हाँ प्लीज कंटिन्यू, सॉरी. हाँ क्या कह रहे थे? नहीं आप बताओ।
मैं हाँ तो बोला मतलब लाइक मेरे आई भी, हैव मेट। हाँ हाँ तो अच्छा जैसे आप ही बताओ, आप बताओ। हाँ मैं बता दूं। जैसे मेरे नानू का भी होटल है, तो मतलब मैं जब वहां जाता हूँ तो वहां मैं जाऊंगा बटर चिकन खाने, अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा वहां जाके। ऑफिस में जा रहा हूँ, वहां क्या आ रहा है, लौकी, नेनुआ, रोटी बिना घी की। मैंने कहा भाई ये तो नहीं तो होता है लाइक I've met हाँ many celebrities in my past 3 or 4 years, but वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था किसी भी सेलिब्रिटी के साथ, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था वो भाई। कि उस समय बादशाह भाई हाइप पे थे, मेजर हिट्स, एवरीवन इज गोइंग आफ्टर हिम। डीजे वाला बाबू वाला टाइम था। हाँ वही वाला टाइम था 2016। हाँ तो उस समय वो हाइप पे थे काफी ज्यादा। हाँ तो तब उनको ऐसा रिएक्ट करते हुए बहुत सही लगा, मुझे लगा हाँ अच्छा ये भी हाँ नॉर्मली है हाँ यूजुअली इट्स लाइक काफी हम्बलिंग एक्सपीरियंस हो जाता है आपके लिए, मतलब भाई। एज एन आर्टिस्ट भी, मतलब अगर आपके पास, अगर आप इतने हम्बल हो जाते हो फिर ओवर द इयर्स। तो लाइक यू सेड यू आर वर्किंग विद मेनी आर्टिस्ट, तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग राइट नाउ? मतलब आपने कहा कि यार टैलेंट मैनेजर, बट काइंडली इलैबोरेट ऑन दैट एंड थोड़ा अपना एक्सपीरियंस Like see, बताएं। I am not working with many artists. I have worked with, like I am working with a company, Gold Pillar Events, which organizes event in our town all around the globe. It is one of the best company I have ever been with. Like मैंने अपना भी सोलो भी ट्राई किया, बट गोल्ड पिलर के साथ क्या है ना ब्रो, लाइक काफी मतलब उनके अंदर जो गोल्ड पिलर है उनके अंदर ये वो आपको इंडिपेंडेंस देते हैं कि अपने मन से आपका फ्रीडम है कि ओके। आपको जैसा सही लगे वैसा काम करो। उनको आइडिया लाके दो। जैसे ये साइफर गोल्ड पिलर के बैनर से एक इवेंट हुआ था साइफर, तो वो गोल्ड पिलर के बैनर से गया था कि गोल्ड पिलर प्रेजेंट साइफर, बट आइडिया मेरा था। ओके। तो दीज गाइज वर सो हम्बल कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि भाई तुम अपना इवेंट करो मेरे बैनर से, जो भी इसमें तुम्हारा कॉस्ट लग रहा है वो मैं लगाऊंगा, जो आ रहा है सब अपना है। कोई तो काफी सही चीज है ये ओके। उनके साथ। और टैलेंट मैनेजर ये होता है कि लाइक देखो ऑलरेडी काफी मतलब फेमस लोग तो हैं जिनको जानते हैं, बट टैलेंट मैनेजर ये करता है जिनको कोई नहीं जानता। ओके। लाइक बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं, छोटे छोटे आर्टिस्ट जिनके अंदर टैलेंट है, तो उनको लो, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, फिर उनको आगे ले जाओ। सो दिस इज ओके। व्हाट अ टैलेंट मैनेजर डू। ओके। तो लाइक यू वर्कड विद मेनी आर्टिस्ट, तो मतलब उनका कैसा सीन रहता था, क्या क्या हुआ थोड़ा कि? इफ आई हाँ। वर्क विद मेनी आर्टिस्ट, सो मेरा जितने भी आर्टिस्ट के साथ हुआ है वो एज अ फोटोग्राफर हुआ है, बीट गुरु रंधावा, बीट रफ्तार, बीट शक्ति मोहन, बीट एमजी बेला, बीट बादशाह है, तो वो एक फोटोग्राफर वाला है। इनमें से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रफ्तार सर के साथ होगा। रफ्तार सीम्स लाइक सबसे हम्बल गाय है आई गेस, मतलब वो ऑनलाइन भी ना काफी हम्बल हम्बल एंड लगता फनी, है। हाँ हम्बल एंड फनी, हाँ बहुत इज लाइक, फनी है वो ना लाइक। मतलब हाँ ऐसा नहीं कि कोई स्टारडम चढ़ा हुआ है, मतलब सबके सारा सब भाई की तरह होते हैं, ऐसा लगता है नहीं उनके लिए मेरे तो। साथ क्या हुआ था, बहुत ही वियर्ड सीन था। लाइक मुझे इतना मालूम था रफ्तार आ रहा है, मैं ग्रीन रूम में होता है एक, वहां बैठा हुआ था मैं बैठा हूँ, मैं ऐसे क्या, मैं सामने वो खड़े थे, मैं वापस नीचे देखने लगा। और मैं इतना उस समय उसमें था ना कि ओवरवेल्म कि भाई मेरे एमिवे का एक गाना है रफ्तार रफ्तार हुआ गिरफ्तार, हाँ 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 जस्ट हाँ बिकॉज ऑफ रफ्तार में सामने मेरे मुंह से वो वाला गाना निकल रहा है रफ्तार रफ्तार। मैंने बोला वो फकीर से इसको नहीं बोलना है यहाँ पे। नहीं वाज पूरा लाइक मान ब्रो जाएंगे। चिल, कोई नहीं आएंगे। नहीं वो सो चिल, वो मुझसे मिला, उन्होंने मुझसे लाइक खुद ही बोला कि और फोटो लेते हैं, मेरे बारे में पूछा एंड ही कमेंटेड ऑन वन ऑफ माय पोस्ट उसके 3 दिन पहले। हाँ मैंने देखा था। हाँ यू कैन हाँ, चेक इट। हाँ मिलते तो हैं। ही वाज लाइक उनको याद था। तुम बोलते हैं यू आर द सेम गाय ना जिसके पे मैंने मिलते हैं लिखा था, मैंने बोला हाँ मैंने देखो मिल लिया। नहीं वो लाइक देखो मिल लिया मैंने तुमसे, फिर बोलते हैं चलो शो के बाद होटल में मिलते हैं। हाँ मतलब तो उनका लगता है फॉर्चुनेटली कि ऑनलाइन भी ही होल्ड्स अ वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सोना जो लेके चलते हैं अपना, कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। फैन आर्ट शेयर हो रही है, सब हो रहा है बहुत एकदम हम्बल हम्बल तरीके से। काफी एंड लाइक दैट आई गेस उनके पास कम्स, है हाँ दैट आई गेस कम्स फ्रॉम बहुत उनका अपनी, बैकग्राउंड, कि वो कहाँ से ऑफ आ रहे हैं। कोर्स लाइक काफी काफी हम्बल थे वो भाई। लाइक वी डिड अ शो बहुत प्यार से एंड आई वाज लाइक, मुझे याद है जो पहला शॉट था शो का, जब वो चढ़ते हैं मैं पीछे से अपना कैमरा लेके जा रहा हूँ एंड मेरे लेफ्ट पे मैंने ध्यान दिया फायर वर्क था। ओके। तो वो उनकी एंट्री पे अचानक से वो फायर वर्क उठा मेरे हाँ हाँ एकदम जस्ट लेफ्ट से कि मैं जल भी सकता था इन तुम साइड हटो। मुझे हाँ। करके उसके बाद फिर फॉर्चुनेटली उसी के रात 12 बजे उनका बर्थडे था, तो अच्छा। वी वेंट टू होटल एंड वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे।
वेरी जेन्युइन है भाई, वेरी। हाँ हाँ, मतलब उन्होंने स्टोरी बताई कि कहाँ केरला से आते हैं, उनका बचपन कैसे बीता। लाइक ही इज द हिज मॉम इज द ओनली पर्सन जो पढ़ाई करे जिन्होंने फैमिली में। हाँ, उनका तो एक गाना आया था प्राउड करके, हाँ, फ्रॉम हिज मिस्टर नायर, लास्ट एल्बम मिस्टर नायर। मिस्टर नायर एल्बम का दैट एल्बम वाज सिक यार। भाई वो ट्रैक ना मोटिवेटिंग है ना, उसको हाँ, सुनो प्राउड आपको वाज लगता है वेरी लाइक गुड, हाँ प्राउड वाज कुछ कर वेरी। सकते हैं। हाँ, मतलब वो एल्बम याद है जब आई थी, मैं पहले 30 दिन तो मैं लूप पे चला के वही सुन रहा था, और आज भी कुछ भाई कुछ गाने वो सुनता एल्बम ही रहता हूँ। लाइक उसमें सब है। हाँ, उसमें कमर्शियल भी है, उसमें हार्डकोर भी है, एंड इट्स वाज लाइक उसमें बहुत सब उसमें भरा एक हुआ है गाना उसमें। है सुपरमैन। हाँ, फॉर हिज मॉम, दैट इज आल्सो वेरी हाँ, गुड। उसका सेकंड वर्स का कभी एंड का वर्ड प्ले सुनना, सेकंड वर्स का रफ्तार के एंड का वर्ड प्ले। हाँ हाँ कौन से वर्ड पे? अभी आपको रिकॉल नहीं होगा, आप सुनना बाद में। ओके। सुपरमैन में। हाँ, तो लाइक हाँ वो तो है। सो अब लाइक वी टॉक्ड अबाउट द geek grapher. Now let's talk about Saksham Mishra as a person. Who are you? What do you like? और आप इनमें कैसे हैं, मतलब how are you? कैसे हैं, like क्या सीन है जैसा आपका? नॉर्मल किड, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है लाइफ में। बहुत ही लाइक हम्म, दोस्तों के साथ घूमना ही वो नॉर्मल सी चीजें हैं, बट as a like apart from being a photographer, I love managing issues like event management. Like of course हम्म, photography के बाद कुछ है मेरे लाइफ में, तो it is event management. Like I have done few events on my own, तो of course with good play events, तो काफी मतलब उसमें जो मैं रिलैक्सेशन मिलती है ना, इवेंट मतलब हम्म, आप एक इवेंट करा रहे हो, एक हम्म, महीने से उस एक दिन के लिए आप पागलों जैसे मेहनत कर रहे हो, एंड जब वो दिन हो जाता है ना भाई, जो सुकून आता है वो काफी अच्छे से हो प्यारा है। तो जाता है तो बस और मजा आती है, बहुत अच्छे से हो जाता है अगर। देखो यार, मेरा ये मानना है एक गंदा इवेंट होना बहुत ही नेसेसरी है आपकी लाइफ में। अच्छा, ओके, हुआ है आपका भी? हाँ ऑफ कोर्स हुआ है ब्रो, लाइक मेरा पहला इवेंट वाज अ योर जो नेटवर्क इशू है मे बी, हाँ ओके फाइन। हाँ तो मेरा जो पहला इवेंट था, हाँ हाँ हेलो आई कांट सी यू ब्रो। हाँ, I can okay, अब am I visible? हाँ ओके हेलो। हाँ 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 हाँ, you're audible, please सो continue. माय फर्स्ट इवेंट वाज अ मेजर हिट फॉर मी, लाइक मैंने मेहनत की, मेरी टीम थी, लाइक मेरे दोस्तों को मैं अपनी टीम बना देता हूँ, सबसे अच्छी प्यारी बात होती है दोस्तों हाँ, कि की। तुम ये कर दो, तुम वो तो कर दो, इट वाज अ हाँ मेजर हिट, तो हाँ हाँ। इट वाज अ मेजर हिट, तो मेरे दिमाग में हो गया कि भाई बहुत सही चीज है ये। और मैं थोड़ा सा होता है ऑफ कोर्स, इंसान हूँ, बच्चा हूँ, तो उड़ने लगता है इंसान अब अपना, अब जब तो अब कोई तो अच्छा नेक्स्ट होने बिग लगता है थिंग ना, सक्षम मिश्रा होने वाला है बस इवेंट मैनेजर बस में। अंदर। हाँ, फिर मैंने काफी इवेंट किया, फिर एक इवेंट आया साइफर, आज तक ये मेरे लाइफ का लास्ट ईयर सबसे वाला। क्लोज इवेंट रहा है मुझसे, लास्ट ईयर। हाँ 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 तो हाँ, बहुत ही हाइप्ड अप इवेंट, सेलिब्रिटीज कमिंग, एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम मंथ्स, पूरा ये मतलब बड़े बड़े अच्छे से बैनर। याद है कि मतलब बड़े बड़े बैनर लगे, लाइक मेरा पहला बिलबोर्ड लगा था। हाँ, मतलब वो और वो भी लाइक सिविल लाइंस के चौराहे पे सबसे बड़ा बड़ा बिलबोर्ड। सबसे बड़ा बिलबोर्ड मेरा था, तो आई वाज लाइक हाँ ऑन अनदर लेवल भाई, हाँ कि ये हो रहा है कुछ में। और उसके बाद मेरे इवेंट के 5 दिन पहले न्यूज आती है CNRC वाला प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, एंड फिर अचानक से इंटरनेट बैन हो गया। ओ भाई, हाँ याद है वो जगह और टाइम ड्यूरिंग पे। दैट की मतलब बहुत से अच्छे लोग थे जिनको नहीं चाहते थे कि साइफर अच्छे से हो, तो बहुत ही रूमर आने लगे कि साइफर कैंसिल हो गया। तो भाई तुम मानोगे नहीं, जितने पासेस सोल्ड थे उतने भी लोग नहीं आए। अरे यार, मतलब इट वाज लाइक लाइक। मेरे पास पैसे हैं, लोगों ने पासेस ले लिए हैं, बट लोग नहीं आए। तो अरे यार, it was a like I won't say it was a bad event or flop event, it was a major hit because हाँ, उस circumstances में करवाना इतना बड़ा इवेंट, लाइक हम्म पुलिस मना कर रही है, सब पीछे पड़े हैं, हर जगह से सिर्फ टंटे हो रहे हैं, कोई अच्छी चीज नहीं हो रही है, और उसके अंदर हाँ, आपको एक इतना बड़ा इवेंट पुल ऑफ करना विद हम्म, 200 पीपल, इट इज अ बिग बिग थिंग फॉर मी। हाँ। और इफ मेरी टीम नहीं होती तो कुछ नहीं होता भाई। बट मुझे लगता है कि वो सेटिस्फैक्शन उस लेवल का शायद थोड़ा कम मिला, कि हाँ जो ऑफ कोर्स चाह कम रहे थे मिला, वो नहीं क्योंकि हुआ। मेरा क्योंकि वो एक ऐसा इवेंट था जिससे मैं प्रॉफिट नहीं मार्जिन कर रहा था। वो मेरा इवेंट ये था, मुझे हिप हॉप सीन थोड़ा सा ग्रो करना था, क्योंकि हाँ, पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ हिप हॉप। तो मेरे सेम लिए ये भाई था कि सेम। मेरे टाउन का भी हिप हॉप सीन ग्रो होना चाहिए। तो बस वहीं पे थोड़ा सा लैक हुआ कि उतनी ऑडियंस नहीं मिली, बट उसके बाद आफ्टर दैट साइफर काफी इलाहाबाद के बंदों को
उस इवेंट से काफी रीच मिली। लाइक मेरा जो विनर था वो काफी अच्छा कर रहा है लाइफ में, यूट्यूब पे वो लाइक लाखों व्यूज उठा रहा है इस समय। एक टाइटल ट्रैक बना था मेरे इवेंट का, वो बंदा काली रात काफी अच्छा कर रहा है। तो अच्छी चीजें ये सब। शायद मैंने काली रात को कहीं सुना है, मतलब आई हैव हर्ड सम बज़ अबाउट हिम। एक ट्रैक आया था लाइक दिस साइफर की लहर में डूब चुका है शहर करके, वो मेरे इवेंट का थीम सॉन्ग था। ओके। तो वो रेडियो पे चल रहा था, हर जगह चल रहा था। उसका सिंगर एक स्कूल किड काली रात था। हिप हॉप तो इट्स लाइक यू, मतलब मैं भी आई एम आल्सो लाइक बहुत काफी इंटरेस्ट है मुझे हिप हॉप में। मतलब आई एम लाइक, तो मैं तो घुस जाऊं, मतलब अगर कोई अच्छा गाना है मैं 10 बार 100 बार सुनूंगा और पूरी मीनिंग निकालूंगा उस गाने की, कहां खोद खोद के। जैसे तुमने बोला ना कि हु इज सक्षम मिश्रा, तो मेरे लिए हिप हॉप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई ग्रू अप लिसनिंग टू एमिनेम, पाक, बिगी। तो मेरा माय मोस्ट फेवरेट केंड्रिक लमार, हैंड्स डाउन। उससे बेटर आर्टिस्ट मुझे कोई नहीं लगा भाई। एमिनेम के बाद उसका पार कोई छुएगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से केंड्रिक है वो। Awesome. Like, मतलब he's loved by culture a lot, and he's like very strong on his ethics and everything, मतलब social issues पे and everything पे गाने बनेंगे। He's like he's so underground, काफी मतलब सही बंदा है। लाइक उसको अपने एथिक्स मालूम है, उसको कमर्शियल ट्रैक करना भी आता है। He's like perfect in it. हाँ, but let's not talk about देसी वाला सीन, क्योंकि वो अभी उठ रहा है, it's in the growing phase right now. So what kind of music, like वहाँ देसी pop में क्या क्या पसंद है, what artists and what type of कलमकार, rap do bro, you like? Raftaar is doing a fab job with this label. कलमकार, कर्मा, कितना प्यारा आर्टिस्ट है भाई वो, उसकी बातें इतनी प्यारी है ना। And Krishna, of course. Krishna is like I guess Krishna is the OG. Like उसके पास जितना एक्सपीरियंस है ना, वो like उसके पास भी एक्सपीरियंस उतना ही जितना रफ्तार लोग के पास है। बस वही बात है कि उसकी राइटिंग कोई समझ नहीं पाया। Krishna is like the only artist जिसकी इंग्लिश एल्बम यूनिवर्सल स्टूडियोज ने साइन करी थी, उसके अलावा किसी इंडियन बंदे की नहीं साइन करी है। आर्टिस्ट की मतलब जो मतलब अपने एथिक्स अपना वो नहीं बोला कि मतलब वो हिप हॉप करता है, वो सोल्ड आउट नहीं है। हाँ, मतलब वो कृष्ण इज नॉट अ सोल्ड आउट। हाँ, मतलब मैंने उसका आज भी स्टोरी देखी, इज लाइक स्टिक टू द जी कोड, मतलब आज भी उसने जो स्टोरी डाली इज लाइक स्टिक टू द जी कोड, यू नॉट, मतलब वहां पे आप फेक नहीं रहना, रियल रहना, वो हर जगह कहता है भाई। अब तो अपना सीन बहुत आगे जा चुका है ब्रो। डिवाइन ने अभी इंटरनेशनल डील साइन किया ब्रो लास्ट ईयर। वो नास के साथ आया था, मास अपील। हाँ, मास, इफ तुम लोग को मालूम है कि नहीं, आई डोंट नो। मास अपील ने अभी एक आर्टिस्ट है किड शॉट, मुंबई से, उसको साइन किया ब्रो। सो लाइक छोटे छोटे आर्टिस्ट। हाँ, किड शॉट पहले कलमकार में था आई गेस था, फिर उसने नहीं, he was never part of कलमकार, he did a track with कलमकार। हाँ, कृष्णा के साथ मेरी बारी he did, but now he's signed to Mass Appeal. मतलब हाँ, like very 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 young people, even Yunan in कलमकार, he's just 19 and he's under the wing of रफ्तार। तो अगले मतलब he's like बहुत बढ़ने वाला है वो बंदा। हाँ, हो गया तुम्हारे गली गैंग एंटरटेनमेंट है, गली गैंग का सीन भाई। हाँ भाई, वो तो MC अल्ताफ। हाँ, आई लाइक MC स्टैन, बहुत ही अंडररेटेड। MC स्टैन बहुत थोड़ा सा मतलब वो चू टाइप का है, बट बंदा बहुत सही है वो। हाँ, उसका वो अस्तगफिरुल्लाह, दैट इज लाइक बहुत हार्ड हिटिंग ट्रैक है वो, माइंड ब्लोइंग। और तुम्हारा रणवीर सिंह इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाँ, मतलब ही इज लाइक इंकिंग, है ना? हाँ, उसके लेवल का नाम एग्जैक्टली नहीं याद है, बट या ही स्टार्ट, हाँ, इंकिंग। तो ही इज लाइक साइनिंग गुड आर्टिस्ट टू। he got 4 artists right now, maybe Devil, Cheetah, Spitfire and Kambari। हाँ, कामबारी इज रियली गुड। कामबारी के मैंने ट्रैक सुने हैं। आई स्पिटफायर ब्रो, तुमने जो उसका पहला ट्रैक था गली बॉय का असली हिप हॉप, हाँ, वो लिखा है स्पिटफायर ने भाई। प्यारा लिखा है भाई वो, मतलब अलग ही, मतलब अलग डीप गाना है वो। गली बॉय वाज लाइक द मूवी जिसने इंडियन रैप मेनस्ट्रीम ले आया, एक्चुअली मेनस्ट्रीम ले आया। मेरे लिए भाई इंडियन रैप मेनस्ट्रीम में लाया है डिवाइन ने। नेजी ने इंडियन रैप को बड़ा किया और डिवाइन ने उसको इसके मेनस्ट्रीम में लाया भाई। उसने अपने गाने में भी दिखाया था कि इंडस्ट्री बना अंडरग्राउंड है। हाँ, इंडस्ट्री को अंडरग्राउंड में लेके और अंडरग्राउंड को इंडस्ट्री बना दिया वाला बंदर। नहीं, वो उसमें भी था, बट उसमें भी था, कोहिनूर में भी था। इंडस्ट्री को लाया मैंने, अंडरग्राउंड है, इंडस्ट्री बना अभी अंडरग्राउंड है।
वो वाला कोहिनूर scene। भाई वन ऑफ द बेस्ट एल्बम होनी चाहिए। उसका एक सबसे अंडररेटेड गाना है टू हाइप। शायद नहीं सुना मैंने। नहीं सुना ना, इसीलिए अंडररेटेड है वो गाना। मैं पिछले लाइक जब से कोहिनूर आया ना, सब सुनने कोहिनूर वाइब है वल्ला, बट मैं सुन रहा हूँ टू हाइप भाई, उसकी बस वाइब ही अलग इसके है उस बाद गाने सुनूंगा, की। इसके बाद सुनूंगा, जस्ट पॉडकास्ट के बाद Please, वही गाना सुनूंगा मैं। बहुत प्यारा मतलब गाना है वो। हाँ, एंड इवन लाइक हैव यू हर्ड ऑफ ब्रदर वी? ऑफ कोर्स मैंने ओजी। ब्रदर वी इज आल्सो द ओजी। और इंग्लिश रैप इंडिया में। वो इंग्लिश के लिए बना है, वो बना हाँ उसी के लिए। उसको भाई हिंदी ब्रदर भी उतनी अच्छी नहीं करेगा जितना वो इंग्लिश में, लाइक वो हाँ स्ले करता है ब्रदर भी भाई। हाँ, लाइक उसमें शुकवंश का जो उसने, शुकवंश जो था उसका, दैट इज यस यस। लाइक, भाई साहब क्या उसमें गाना है वो। भाई वो बहुत ही अंडररेटेड आर्टिस्ट है भाई। इफ हाँ इंडिया में इंग्लिश रैप चले ना, तो ब्रदर भी हाँ और कृष्णा हाँ बहुत हाँ, बवाल हाँ मचाएंगे। कृष्णा इज लाइक, जब क्या कहते हैं उसने वो निकाला था सीधा मेकओवर, तब उसने उसको हाँ उसने डैक्स को भी डिस कर दिया था। नहीं, एंड वाज लाइक कि मालूम है डैक्स निकाल देगा डिस ट्रैक। ठीक है, तो इंग्लिश में हम लोग तो भाई। इंग्लिश में डिस कर देंगे। डैक्स निकालता ना तो वो सीन ही अलग हो जाता, मुझे बहुत हाँ, पसंद आता वो। बहुत भाई, वो इंग्लिश रैप वापस से वो सुनने मिलता जो सेल आउट में क्योंकि सुनने मिला डैक्स था। भी अच्छा आर्टिस्ट है। डैक्स इज अ गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड आर्टिस्ट। हाँ, वो तो वो इट्स लाइक थोड़ा बहुत रहता है वो तो। मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। नॉट एवरीवन कैन बी एमिनेम, हाँ, थोड़े बहुत एंड बैड सम ऑफ एस्पेक्ट्स देम सबके आर होते टू हैं। फेमिनिन टू बी एमिनेम। Oh, shots fired. Damn दैट that. आई नो। Yes. But like I even think कि Emmy Baby is a good artist. मतलब खराब आर्टिस्ट नहीं है। भाई मैंने कभी नहीं बोला एमबीबी इज अ बैड आर्टिस्ट। उसको ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने इतने प्यार से आती है हाँ ना भाई। वो बंदा देखो, मैं उसको गलत इसलिए नहीं बोलता। देखो मुझे उसके गाने नहीं पसंद, वो मेरा ओपिनियन है, बट हाँ उसको मास खींचना है, उसको पैसे हम्म कमाने हैं, उसको अपनी हाँ फैमिली को देखना है, तो ही इज हाँ, नहीं, डूइंग नाइस। और इट्स लाइक कि उसको पैसे कमाने, इट्स लाइक मेरा स्टाइल ही यही है। अब अगर उसका सभी, स्टाइल है भाई वो। और भाई मुझे ये अच्छा लगता है, 10 मिलियन सब्स हैं, हाँ सब है, इतना फेम है, उसके बाद भी वो बंदा डरता नहीं एक्सपेरिमेंट करने से पहले, हाँ कर देता है। हाँ हाँ, उसके अंदर एंड ये बहुत सही ऑब्वियसली, चीज है। हाँ एंड ऑब्वियसली लाइक कि हर आर्टिस्ट थोड़ी अपने को कृष्णा जैसा चाहिए या एमिनेम जैसा चाहिए। थोड़ी नाचने वाली भाई वैरायटी भी तो होनी चाहिए। हाँ नाचेंगे किस पे मचाएंगे भाई? मचाएंगे। मचाएंगे तो गुड ट्रैक। हाँ हाँ मतलब वाज अ एवरी नाइस ट्रैक। आई, हाँ मतलब अब जैसे जंपकर है, जंपकर का हुक तो इट्स लाइक अभी भी दिमाग में अटका हुआ है वो। जमकर है, एमिवे का एक ट्रैक है बहुत लाइक प्यारा ट्रिब्यूट टू आउट ऑफ एमिनेम, जो वो संपर्क आई गाना है गेस। इतना नहीं, आउट ऑफ संपर्क तो भाई उसके हाँ पुराने ट्रैक हैं, वो हाँ सब सबने नहीं सुने होंगे, सब ये लोग रफ्तार के बाद से जानते हैं जो लोग। हाँ उसके लिए एक ट्रैक आया था ट्रिब्यूट टू एमिनेम, जो हिट नहीं हुआ था उतना। हाँ, और भाई इतना मैंने भी सुना था ये। प्यारा ट्रैक है वो भाई, उसको सही से 2-3 बार सुनो, पहली बार में अच्छा नहीं लगेगा, उसको 2-3 बार सुनना, यू विल लव इट। हाँ हो उसने सकता वो है। लूज योरसेल्फ की बीट यूज की उस पे, हाँ हाँ बहुत हाँ। प्यारा। इवन इंडिया में हो गया एंड पाकिस्तान में भी इट्स लाइक हिप हॉप सीन दो तीन लोगों की वजह से काफी ग्रो हो रहा है। भाई देखो, आई, हाँ मैं वो देखो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है ये कि तला, अंजुम और यूनिस ने जो भी बोला हो वो अपार्ट हाँ रखते हैं, सिर्फ हाँ आर्टिस्ट की हाँ बात करते हैं। हाँ हाँ, मतलब हम उनके वो आर्ट पे ध्यान देंगे। पर्सनालिटी में हो सकता है खराब हो, इसलिए ओके, हमें वो कौन सा उनके उसको साथ मिलना साइड है रखते हैं, जाके। बट तला यूनिस, हाँ, नॉट अंजुम। अंजुम इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नो अंजुम डाउट, इज अ वेरी बट ब्रिलियंट मुझे आर्टिस्ट। जो यूनिस से वो वाइब आती है ना भाई, उसका एक गाना था डिप्रेशन, नहीं सुना, एक बार सुना है, हाँ वो एक बार सुनो। सुना है वो मैंने। वो मतलब उसने अपने यूट्यूब पे निकाला था, हाँ हाँ प्यारा एल्बम है भाई वो गाना, एल्बम हाँ बोल रहा हूँ सॉरी, हाँ, बहुत प्यारा गाना है। डिप्रेशन है और मुझे हाई भी था एक गाना। भाई मुझे यूनिस की जो राइटिंग लगती है ना, वो काफी मतलब रिलेटेबल लगती है चीजों से। यूनिस का फ्लो इज लाइक बहुत बहुत ज्यादा कैची, वो पकड़ नहीं सकता कोई। आई डोंट नो इफ तुमने सुना है कि नहीं, बहुत ही छोटा आर्टिस्ट, लाइक छोटा तो नहीं बोलेंगे, लाइक उसकी मास ऑडियंस कम है, तो सनी खान दुजानी। हाँ, उसका मैंने वो सुना, ला हासिल, क्या ट्रैक है वो। ला हासिल भाई, बहुत वाह, ब्रिलियंट ट्रैक भाई। बहुत वाइब ट्रैक है उसकी जो वो। बीट है, हाँ मुझे वो पुराने वाले जमाइन की बीट आता था सुबह सुबह, हाँ 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 एकदम वही हाँ, मतलब वाइब दे यार देती है वो बीट। राइटिंग इतनी प्यारी लिखी है उसमें, उसने बंदे ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा दिल निकाल के फेंक दिया बंदे ने एक गाने में। एक बहुत ला प्यारी हासिल राइटिंग है। इंडिया में इफ फन पे आओ तो बाली है दिल्ली से। पाली एंड 40, 40 दोनों है, अलग ही मस्त इंसान है अलग ही भाई वाइब, दोनों, कुछ अलग भी लिखते मस्ती हैं कर रहे हैं। हाँ भाई। उनकी राइटिंग होती है जो पढ़े जाती है, कि मतलब भाई हाँ कहाँ से ये रेफरेंस, ऐसा मीम हाँ रेफरेंस किसके हाँ पास होता है भाई। हाँ हाँ, मतलब बाली, एंड ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, आप वाइब कर रहे हो मस्त।
4-5 बार हंसते सुनोगे। कूदते हो भाई, बहुत प्यारी चीज है भाई। उसका बहुत एक गाना है सुनना, अरे वो तो मैं बहुत प्यारा लूप पे गाना। सुनता हूँ उस गाने को। हाँ मैं भी लोग मतलब मैं एक बार चला रही, दूसरी बार चलना ही है वो, सुनेंगे 3-4 बार एक बार चला लिया तो। 40 बहुत का जो बहुत ये बादशाह के साथ ट्रैक आया था, बहुत तेज बहुत तेज। हाँ फायर ट्रैक था ये भाई। हाँ। अभी इन लोगों ने भाई बादशाह के एल्बम में भी निकाला ना हॉट लॉन्डे। हॉट लॉन्डे मुझे बहुत सी लगा, लोगों को नहीं पसंद आ रहा वो, हाँ क्योंकि कुछ लोगों लोगों को को समझ में, लेकिन कह रहे हैं कि बार बार एक्सेसिव है। लॉन्डे मैंने लॉन्डे। कहा, कह रहे हैं मैं एक्सेसिव भाई, राइटिंग है, मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मेरे साथ क्या है ना ब्रो, कि अब मैं वो नहीं सुनता जो मेरे कान को अच्छा लगेगा। अब मैं वो सुनता हूँ जिसमें वो राइटिंग पसंद आती है। हाँ और हॉट लॉन्डे में क्या बार्स मारे तीनों ने। हाँ हाँ बहुत, तीनों ने बहुत अच्छे बात बताई, एकदम ऑथेंटिक फील के साथ। बाली ने तो एकदम कॉल बैक पे कॉल बैक, सुनना भाई वाला मुझे, सारे। हाँ सुनना वाला, वाईफाई वाला, लाइक हाँ नो कोरस वाला भाई सब उसने डाला उसमें। मुझे बादशाह की नई एल्बम इतनी ज्यादा पसंद आई ना भाई, हाँ कि मतलब उस दो, बंदे ने याद दिला गया कि भाई वो वही बंदा है जिसने पिंजड़ा, हाँ बारिश और ये सब गाने किए हैं, हाँ बंदूक। हाँ मतलब सबको मतलब बहुत समझने लोग लगे हाँ थे कि ये हाँ सिर्फ गेंदा हाँ फूल। हाँ भाई एवरीवन हेट्स ऑन बादशाह, मतलब एवरीवन इज सब लाइक उसके बादशाह मतलब, इज लाइक ट्रैश। मुझे बहुत सही लगता है भाई बादशाह। हाँ मैं उसके कमर्शियल गाने नहीं सुनता हूँ, ठीक है वो टेस्ट नहीं है, बट द थिंग इज भाई कि उसको करना है लेबल के लिए। अब गेंदा फूल जैसे गाने पे 250 मिलियन व्यूज हैं, शुरू पे कितने, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन बस। जबकि शुरू इतना 2.5 मिलियन हाँ प्यारा ब्रो ट्रैक इतनी। है, शुरू इतना भाई प्यारा शुरू के ट्रैक है। मोड, भाई वो एक लौता ऐसा ट्रैक है जिसमें मैंने राइटिंग राइटिंग हटा दो, उसकी बीट्स सुनो पीछे। बीट्स भी बहुत अच्छी, उसको मैं मतलब शुरू में भाई, जब भी सुनता हूँ गूज़बम्स आ जाते हैं। गूजबम्स उसके जो पहला वर्स के बाद बम्स आता है, हाँ उसके बाद हाँ, जबकि गाना सिर्फ 2 ही मिनट का है वो, 2 मिनट आई 16 सेकंड आल्सो वांट शायद। टू मेंशन रागा। हाँ रागा भाई इज ऑल्सो गुड। ही इज रागा है वन काइंड ऑफ आर्टिस्ट जो मतलब बहुत ही मतलब छोटे गानों में ऐसी बातें बोलता है ना। रागा इज गुड। रागा एंड मुफाड़ टू, मुफाड़ इज लाइक द इन लोग समझ थिंक लगती है इनका थोड़ा मार्केटिंग ना थोड़ा कम करते हैं लोग, इनका एस्थेटिक्स पे थोड़ा कम ध्यान रहता है, मुझे ऐसा लगता है, तभी ये इतने भाई बड़े मेरा नहीं ये है। मानना है ना कि ये लोग प्योर आर्टिस्ट हैं, इनको वो सब मतलब मीडिया हाँ वाली चुतियापे नहीं आते हाँ हाँ, कि मतलब जैसे पीआर कि हम गाने बनाएंगे, एजेंसी। अगर सुनना हाँ, है तो सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। लाइक ओके। डीनो जेम्स को देख लो भाई। टीनो जेम्स, ओ माय गॉड दैट गाय किसी ने इज। सोचा था एक गर्लफ्रेंड गाने, भाई मुझे उसका कॉन्सेप्ट इतना सही लगा ना, उसको मालूम था उसके अंदर कैपेबिलिटी है लिखने की, उसको ऑडियंस चाहिए हाँ थी, तो हाँ उसने वही चीज किया जो मुझे नहीं लगता है कि लोग बोलते हैं गंदे गाने लिखा। वो हाँ गंदे गाने चलते हैं। हाँ ऑब्वियसली। पहला गाना गर्लफ्रेंड निकाला जो थोड़ा सा उस टाइप का था, लड़कों को बहुत हम्म अट्रैक्टिव लगा, उसको हाँ ऑडियंस हाँ मिली, उसने फिर अपने असली टैलेंट उसके बाद दिखाया। वही, जबकि जब मैं गर्लफ्रेंड सुनता हूँ मुझे लगता है थोड़ा सा फोर्स ट्रैक है, बट ऑडियंस जरूरी लेने था। के लिए। हाँ लिखाई उसमें अच्छी है, बट मुझे लगा थोड़ा सा ज्यादा फोर्स कर दिया उसने उसमें। भाई एमिनेम को देख लो, एमिनेम बोल रहा हूँ सॉरी, फक, एमिवे को देख लो। इफ हाँ उसने डिस नहीं किया होता तो आज एमिवे के बाद 10 मिलियन होते। नहीं होते, मतलब वो मेहनत करी बहुत बंदे ने, बट होते नहीं 10 मिलियन उसके पास, वो मेहनत आएगा की सभी है, बट क्योंकि हाँ उसकी गलती नहीं डिस करना, उसको मालूम था हाँ इंडिया में क्या चलता है, हाँ। क्या एंड मासेस अगर को हाँ अट्रैक्ट करता है, एंड एंड आई अगर उसको लगा अप्रिशिएट डिस हिम। करना, एंड अगर उसको लगता है डिस करना चाहिए तो करना चाहिए ना, अपना ग्रजेस निकाल लो भाई जितने निकालने हैं। उसका कॉल है भाई। दिस हाँ कल्चर इसीलिए बना है कि लड़ाइयाँ ना हो। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि हम जाके गोलियां मार रहे हैं, वरना मतलब हाँ, टूपाक और पेगी का सीन। बिगी हो जाता फिर भाई। वो वही तो तो वन का वो छोड़ ही दो भाई। वही तो दैट इज लाइक वो तो बहुत ही काफी सैड सैड सीन है यार वो। अब भाई सब बोल रहे थे कि कैसे रफ्तार को डिस कर दिया ना, वो लाइक ब्रो एमिनेम को डिस कर रहे हैं लोग। एमजीके जैसा हाँ लड़का है एमिनेम को डिस कर रहा है, तो और रफ्तार क्या है एमिनेम यार। रिप्लाई कर रहा है, हाँ और रफ्तार ने भी नहीं भाई, रिप्लाई किया। एमिनेम का रिप्लाई तो भाई किल एक शॉट किल शॉट। ओवर आज तक का किल्ड। भाई वो ट्रैक हाँ उसका करियर खत्म कर दिया मेरे लिए हाँ भाई। मुझे एमजीके इतना ब्रिलियंट आर्टिस्ट लगता था, बट मैं थोड़ा सा हूँ स्टैंड टाइप, लाइक एमिनेम को अलग मानता हूँ मैं, तो उसके हाँ खिलाफ सुन एमिनेम। नहीं पाता हूँ। हाँ इवन इवन लॉजिक इज वेरी गुड। भाई आई जस्ट वांटेड टू से, मतलब मेरे आ रहा था लॉजिक का, उसने अभी रिटायरमेंट ले ली क्योंकि ऑफ हाँ कोर्स चुतियापे की वजह से, बट भाई हाँ ब्रिलियंट आर्टिस्ट है। उसका एक गाना ISIS, इफ तुमने हाँ सुना हाँ हो, हाँ हाँ बहुत हाँ प्यारा उसका उसका है। हाँ देन एक वन एट गाना है डबल हंड्रेड 1800 करके, 1800 बाई दैट, 1800, हाँ। उस पर बहुत वाइब करता हूँ। एवरी डे एक गाना उसका, एवरीबॉडी एक गाना है, बॉलिंग एक गाना है, लाइक लॉजिक हाँ इज वेरी नाइस। लॉजिक इज अ वेरी, एकदम ओजी और एकदम प्योर हिप हॉप, नो बुलशिट।
हाँ सो अब काफी हम लोग हिप हिप हॉप पे हॉप, चले हाँ गए मैं भी ये सोच रहा था कि बट आई फोटोग्राफी गेस से हिप हॉप पे ज्यादा। बट आई गेस लोगों को सुनना चाहिए यार, जाके जो हाँ भी यार, सुन रहा है बहुत जाके अच्छी सुनो चीज यार है हिप गाने। हॉप, सपोर्ट हाँ करो प्लीज। अच्छे अच्छे गाने सुनो जाके। तो अब जैसे यू सेड दैट यू स्पेशलाइज इन स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड इवेंट फोटोग्राफी। इवेंट फोटोग्राफी। सो जैसे जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी है, सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? आप फ्रेम्स लेना कैसे सीखते हैं? लेट्स से मुझे फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है एंड आई एम लाइक कि ठीक है स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप भाई उस पर्टिकुलर जॉनर में स्टेप कैसे बाय चलना स्टेप, होता है? तो स्ट्रीट फोटोग्राफी कोई मतलब अलग सी चीज नहीं, जस्ट आप निकल जाओ अ, इलाहाबाद जैसे शहर में, आप चौक चले जाओ, आपको एक दिन में 30 फ्रेम मिलेंगे। बस आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपका अच्छा होना चाहिए। देखो फोटोग्राफी, मेरा ये मानना है कि फोर्सफुली आप नहीं कर सकते हो कि जस्ट बिकॉज ये कूल है मैं करूंगा फोटोग्राफी, नहीं। हम्म अंदर से आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन होनी चाहिए हम्म कि आप घर से निकल लो ना, आप सोच के जाओ मुझे आज ऐसा फ्रेम चाहिए कि भाई ऐसे जलेबी छन रही हो, उसका तेल ऐसे गिर जाओ, पॉइंट हम्म पॉइंट पॉइंट, ये इमेजिनेशन लेके जाओ। तब ऑल्सो आप उसके इंस्टिंक्ट। लिए, हाँ तब आप ऑफ कोर्स, हाँ तो उस इमेजिनेशन को मैच करने के लिए तब आप मेहनत करोगे। हम्म इफ आप कुछ सोच ही के नहीं जा रहे हो, ब्लैंक जा रहे हो कि हाँ मुझे फोटोग्राफी करनी है, क्या नहीं मालूम, हाँ क्या खींचना है भाई? फोटोग्राफी अपना अपना तरीका होता है। ये मेरा हाँ काम करने का तरीका है कि इफ मैं जा रहा हूँ, मुझे मालूम है आज शाम को मुझे वाटर पार्क जाना है ऐसी फैमिली के साथ, तो मैं सोच के जाऊंगा कि भाई मुझे वाटर पार्क में एक एक ऐसी फोटो मिल जाए कि कोई बंदा साइड में उछलते हुए आ गया, तो हम्म पहले से सोचोगे हाँ तब वो इवन फोटो बनेगी आपके हाँ लिए। इवन खाना खाने भी जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि जो सबसे पहले दिन तक खा लेंगे उसको, सोच के जाते हैं कि आज चाट खाएंगे आज चिकन हाँ खाएंगे। तो मतलब हाँ, ये थोड़ी ना आप तो निकल रहे हो कि नहीं सामने हाँ यार मतलब हाँ फुल्की है खाना है, नहीं हाँ भाई आप हाँ सोचते हो कि आपको क्या हाँ खाना है, तो बस वही चीज है। एंड हाँ स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत ही प्यारी चीज है कि भाई आपको मेहनत नहीं करनी है, हम्म आपको बस अपनी स्किल पे काम हाँ करना है, क्योंकि रिक्शा आँख वहीं पे चलेगा, हाँ जलेबी वहीं पे छनेगी डेली, हाँ हाँ और आँख डेली होनी वहां चाहिए। लड़ाई होगी, डेली वहां कॉलर पकड़ा जाएगा। आपको बस क्या करना है अपनी स्किल पे पर डे। मेरा हाँ ये मानना है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है ना जो कभी खत्म नहीं होती, कि वो मोमेंट जा नहीं रहा है कि आप आज नहीं आया परफेक्ट शॉट, आप घर जाओ काम करो कल आएगा, कल कल आता है, आएगा। क्योंकि हाँ दुनिया वही रहने वाली है ना, काम छोड़ हाँ के जलेबी वाला नहीं जा रहा है। हाँ वो इट्स लाइक बस हाँ यही चीज है। हाँ वो चीज हर रोज को एक अच्छा सा शॉट मिलेगा, हर रोज एक बहुत एस्थेटिक बहुत अब मेरा ये आयरन। मानना है कि भाई हाँ एडिटिंग जो होती है, जैसे तुमने बोला था इम्पोर्टेंट नहीं होती, स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक फोन से आप ऐसी फोटो नहीं ले सकते हो कि लाइक मैंने एक दुकान की फोटो ली है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, हाँ काफी लोग हैं, भीड़ है, कुछ समोसा बट रहा हो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं मतलब एडिटिंग इसलिए जरूरी है कि मुझे अब समोसे पे फोकस करना है। हाँ आप 15 फीट मतलब बहुत पीछे से फोटो लेके समोसे पे एकदम फोकस नहीं कर सकते हो, सब आएंगे उसमें। यहाँ पे आती है आपकी एडिटिंग, हाँ यहाँ पे आता है स्नैपसीड, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से सीखना है कि कैसे आप समोसे को हाईलाइट कर सको, हाँ प्रेजेंटेबल बना सको। हम्म। अच्छा अच्छा मुझे अभी जस्ट याद आया, हम लोग हिप हॉप सीन की इतनी बात कर गए, वी डिडंट इवन मेंशन सीधे मौत। मतलब अगर सीधे मौत मेंशन नहीं करेगा तो ये वाज भाई लाइक ये तो गलत हो जाएगा, हाँ गुनाह हो जाता भाई, भाई सीधे भाई मौत ना मेंशन करते तो। भाई दिल्ली सीन, जो लोग बोलते नहीं कि मुंबई का सीन दिल्ली से बहुत बेटर, भाई दिल्ली का इतने प्यारे रैपर है ना, वो मतलब उनको ऑडियंस नहीं मिल रही है। मुंबई के पास एक पूरी मूवी मिली है उनको, गली हाँ बॉय, हाँ और दिल्ली के पास सिर्फ अभी 2 मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है, बादशाह और हाँ रफ्तार, हाँ और हनी ऑफ कोर्स, हाँ तो उसको भी मेंशन करना बनता है भाई, हाँ हनी को भी इसलिए बनता है। हाँ वो एवोल्यूशन लाया। हाँ अब अच्छा नहीं रहा, इट्स लाइक कोई बात नहीं, बट ही वाज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग, मतलब वो माफिया मुंदीर मुझे बात की ब्रो, वजह मुझे भी ऐसा कुछ हनी से प्यार नहीं है, बट जो हाँ फैक्ट है कि उसने हाँ लाइक रैप के लिए ऑडियंस रेड की है, एक हाँ बनाई अलग निकाली से। उसने, गोद के ऑडियंस निकाली उसने माफिया मुंदीर के हाँ साथ। कि बट हाँ सीधे मौत जो इज लाइक सीधे सीधे मौत प्लीज ना से बहुत भाई, वो डुओ इतना अट्रैक्टिव, उनकी सिक, राइटिंग, इतनी सिक। हाँ भाई मुझे उनके अंदर ये अच्छा लगता है, वो राइमिंग पे उतना काम नहीं करते जितना वो अपनी राइटिंग पे करते हैं, हाँ क्योंकि मतलब एक राइमिंग हाँ सेकेंडरी चीज होती है उसमें। हाँ या तो आप एकदम मल्टी सिलेबल राइमिंग सारी करो जैसे कृष्णा करता है कि भाई 5-5 सिलेबल राइम कर रहे हैं, तब वहां पे आपकी राइमिंग हाईलाइट होती है। वहां लेकिन पे एक दो ऑडियंस पे लैग कर जाती हाँ है। हाँ लेकिन एक दो सिलेबल राइम करने से अच्छा है कि हम अपनी स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा ध्यान दें।
तो फिर वापस आते हैं फोटोग्राफी पे, तो हाँ स्ट्रीट में क्या है ना भाई, हाँ तो ये मेन है जहाँ पे हाँ फोटोग्राफी के सॉरी लिए भाई। आते हैं हम लोग। हाँ तो बस यही है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में यही है कि आपको चांस बहुत मिलेगा, बस आपको डेली अपनी स्किल पे काम करते जाना है, एक ना एक दिन यू विल मेक इट, कि आपको ऐसा शॉट मिलेगा जो बहुत ही सेटिस्फाइंग है आपके लिए। या आई टोटली एग्री। मतलब एक बार आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट जब आता है ना कि हाँ यार ये बहुत अच्छा शॉट है, उसके बाद आपको वैलिडेशन भी मिलता है कि हाँ भाई क्या भाई बात है, ये फोटो। फोटोग्राफी में बहुत बहुत मेजर की होती है सोशल मीडिया, लाइक वी हैव टू रीच टू द पीपल, लाइक जो लोग बोलते हैं ना मुझे हैशटैग नहीं पसंद, भाई फॉर अ आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो। हाँ मेरा ये मानना है कि मैं तो यूज हाँ करता हूँ, मैं करूंगा भाई, हाँ कि लोगों को ऑब्वियसली। टैग क्यों करते हो, पोक क्यों करते हो ब्रो, क्योंकि इफ मैं टैग नहीं करूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा। इफ कोई ए पर्सन लाइक ए कोई बड़ा फोटोग्राफर है, वो मेरी फोटो लाइक भी नहीं करे, सिर्फ देख रहा है ना, तो उसको मेरा नाम कहीं पढ़ा है उसने, हाँ हाँ इट्स लाइक वेरी बिग। आज नहीं आपकी तो कल वो काम आएगा आपको। एज एन आर्टिस्ट आपके लिए अपना काम विजिबल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत बहुत आप चाहते इंपॉर्टेंट है भी हो भाई। कि यार दिखे तो लोगों को मैंने काम क्या किया है। जैसे मैं भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट पोएम्स, तो मेरी पोएम्स में क्या रहता है, जो बहुत सिंपल पोएम्स होती है ना, जो कि मैंने यूजुअली कुछ रैंड फॉर्म में लिख दी, या फिर कभी बीटी आ रही तो उसमें लिख दी, तो दोज गेट्स हंड्रेड्स, तो मतलब वो 100 लाइक्स क्रॉस कर जाती है, क्योंकि वो इट्स लाइक वेरी इजी राइटिंग। बट रिसेंटली आई हैव ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब एक पोएम लिखी जिसमें आई ट्राइड गुड राइमिंग, आई ट्राइड मेटाफर्स, सिमिलीज, तो वहां मेटा राइमिंग भी ट्राई करी है मैंने, तो वहां पे क्या है, थोड़ी ऑडियंस कम है, तो हम लाइक ठीक है कोई बात क्योंकि नहीं। भाई देखो, ऑडियंस क्या ढूंढती है ना, इजी चीज, हाँ जल्दी से समझ आए खत्म हो। हाँ बहुत कम वो ऑडियंस होती है जो आपके काम पे टाइम देती है, लाइक हाँ मेरी कोई फोटो है, इसमें उसको एक बेसिक फोटो जो होती है ना, कि भाई एक ऑब्जेक्ट है सुंदर सा, उसके हाँ पीछे की दुनिया ब्लर है, उस पर हाँ थोड़ा सा फोकस है, वो भाई हाँ ऐसे फोटो हिट हो जाएगी। हाँ, हाँ सिर्फ आप वहीं पे ट्राई करो कि उस किसी एक मतलब एक फोटो से स्टोरी बताओ। हाँ लाइक बहुत नीचे मेरी एक फोटो है जिसमें एक पूरी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, और एक आदमी चप्पल निकाल के हाँ एक जमीन पे सो रहा है, मैंने देखी वो है। कलर्ड में है। वो एक हाँ पूरी अपने आप में एक स्टोरी बताती है। वो फोटो इतनी कभी ऊपर नहीं गई होगी जितनी हाँ मेरी एक सिगरेट की फोटो गई है। हाँ हाँ वो आई गेट इट, क्योंकि वहां पे एस्थेटिक सेंस जो होता है वो काफी काम आता है। अगर इवन लाइक जस्ट लाइक रैप, वहां पे भी एस्थेटिक सेंस कम होता है अगर ऑडियंस में, तो आप नहीं चलते उतना, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर एक आर्टिस्ट भाई को कोई सही है, दिक्कत नहीं। देखो हाँ एक आर्टिस्ट को मेरा ये मानना है दोनों चीज करनी आना चाहिए। हाँ लाइक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कमर्शियल काम भी करना आना चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस बने रहे, और हम्म आपको एक अपने लिए काम करना आना हाँ चाहिए, लाइक कल्चर के लिए काम करना है आपको। अगर कल्चर आप एक एथिक्स के साथ। हाँ अगर आप अपने आप को एज ए फोटोग्राफर सॉरी, या तो एक पोएट, अगर आप अपने आप को एक पोएट या फोटोग्राफर कह रहे हो, तो यू हैव टू टेक द कल्चर आगे लेके जाना है आपको। हाँ आपको जो वो राइटिंग आपके आपके अंदर लाइक लेजेंड्स करके गए हैं, या फिर जो फोटोज आपके लेजेंड्स खींच के गए हैं, आपको उनको जस्टिस देना है। ऑफ कोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफर, लाइक ऑफ कोर्स माय इंस्पिरेशन तुषार महाजन, ही इज ओके वर्किंग विद बीबी की वाइन्स, ऑफ कोर्स यू नो ना। हाँ 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 तो ही इज वर्किंग विद हिम, ही इज हाँ ऑफिशियल फोटोग्राफर ऑफ बीबी की वाइन्स। हाँ हाँ बट उस बंदे ने उस फेम में ना कि बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, ओप्पो के साथ डील हो रखी है, गूगल ने प्रमोटर बना लिया है, मतलब हम्म, अच्छी चीजें, काफी चीजें हैपनिंग कमर्शियली हो रही है, बट वो बंदा अपने एथिक्स नहीं बोला। वो आज भी अपने इंस्टा पे ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शूट करता है, वो नहीं डालता, वो क्या डालता है जो उसको पसंद है, हम्म जो मतलब यस उसको खुशी देती है, और मुझे उनसे वो चीज नहीं पसंद है ना भाई। वो बंदा अपना इंस्टा अपने फोन पे, लाइक ही गॉट अ स्टूडियो, उसके पास बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो कुछ भी डाले, बट वो बंदा आज भी अपने फोन पे छोटी लेंस लगा के पानी उछलते हुए वो डालता है। वो सब तो चीजें दैट्स बहुत लाइक कि पसंद है मुझे। हाँ अपना सेटिस्फैक्शन के लिए आप इंसान हम्म करता है। तो उससे याद आया कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सक्षम मिश्रा, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द गीक ग्राफर, आगे के क्या प्लान्स हैं? भाई आगे की यही प्लान है कि इसी में कुछ करना है बस। अब देखो, अभी मेरे इसके लोग बहुत से होते हैं जो फिगर नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है, और एटलीस्ट मैं अपने आप को थोड़ा सा लायबल मानता हूँ कि मैंने ये जान लिया, मुझे इसी में करना है जो भी करना है, इससे बाहर नहीं। हम्म फोटोग्राफी में मुझे करना है, तो अब मैंने बहुत सी चीजें सोची कि कॉलेज के साथ साथ मैं फोटोग्राफी में एक डिप्लोमा कोर्स करूंगा। ओके क्योंकि देखो आपको एक जरूरी होता है कि कोर्स करना प्रॉपर, ये नहीं कि स्टार्टिंग ही में जरूरी कि मतलब मैंने आज 100 कोट का फोटोग्राफर बनना है हम्म कॉलेज ज्वाइन के, नहीं।
पहले टाइम दो, समझो, खुद से सीखो गूगल से, और फिर लगे कि नहीं ये इन्वेस्ट करने वाली चीज है, क्योंकि भाई पैसे तुम अपने नहीं अपने माँ बाप के दे दो, हम्म, तो बी डबल श्योर अबाउट इट कि हाँ, तुमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं। कि जैसे हम्म, अब मैंने इतना कर लिया, लाइक बहुत से बच्चे बोलते हैं, मुझसे खुद बोल रहे हैं मेरे जूनियर कि भाई मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते फोटोग्राफी के लिए। हाँ, तो भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है नहीं करना चाहिए। मैं हाँ, नहीं करना कोई चाहिए। अपने माँ बाप क्यों करेगा यार, कि मतलब हाँ, उनको मालूम है 3-4 अच्छे जो मतलब स्टेब्लिश्ड कोर्स है तुम्हारे पास डॉक्टर इंजीनियरिंग की, जहाँ पे मालूम है कि बच्चा पैसा कमाएगा। हाँ, और देखो एक कोटा फैक्ट्री का वो था डायलॉग कि माँ बाप की तरीके गलत होते हैं, नियत नहीं, है ना इंटेंशन भाई। नहीं, यस, हाँ, हाँ, इंटेंशंस उनके तुम्हारे लिए। तो भाई मेरा ये मानना है, मुझे भी ऐसा थोड़ी ना कि कल ही मतलब सो के उठा मैंने बोला फोटोग्राफी, मेरे पापा ने बोला जॉब था, हम्म, नहीं, हम्म, तुमको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने भी अपनी पढ़ाई की, साथ ही साथ फोटोग्राफी भी की, और एक टाइम ऐसा है कि जब मैं अर्न करने लगा, कि हम्म, मैंने स्टार्टिंग में 3-4 साल फ्री शूट किए, सब किए, फिर काम आने लगा, पेड शूट आने लगे, तो एक सिक्योरिटी बनती है अपने पेरेंट्स के मन में कि नहीं इसमें कुछ एक है, करियर है। हम्म, फिर हम्म, आपके पास अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं अभी, आप हम्म, उनको दिखाओ कि देखिए पापा इन्होंने कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ में इसी चीज से। हम्म, यस, क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसा आर्ट फॉर्म नहीं है जो बहुत ही बिग हो, इसमें बहुत ही मेजर हो कि सबकी आई बॉल उस पे है, कि हाँ, लाइक नहीं, किसी को एक्टर बनना है तो वो बता सकता है देखो इसने ये उखाड़ा है, हाँ। हाँ, बट अभी भी बहुत फोटोग्राफी नीश इतनी है। बड़ी चीज नहीं हो गई कि लोगों को मालूम हो कि हम्म, कौन इसमें बहुत ही आगे चला गया है। वही कि अभी भी नीश तुमसे है ही मैं ये पूछूं एक। भाई, हाँ वो तुमसे ही मैं पूछूं कि भाई इंडिया में कोई टॉप 5 अच्छे फोटोग्राफर बता दो। दब्बुरत नहीं नानी बता हो पाओ, गया। बस चलो ठीक उसके है, हाँ। अलावा बताओ। सही में लाइक आपका लाइक तुषार महाजन नहीं बता पाएंगे, एटलीस्ट लाइक मैं नहीं बस जानता। यही चीज होती है ना, आपको मतलब ये अभी उतनी आईबॉल नहीं कर पाई, तो आपको हाँ, दिखाना पड़ेगा अपने माँ बाप को। जैसे आज हम्म, से 20 साल पहले किसी को सिंगर बनना था ना भाई, तो उसको भी हम ही लोग जैसी चीज होती थी, क्योंकि ये ट्रस्टेड आर्ट फॉर्म नहीं थी उस समय। हाँ, अब आ गया है कि हजारों सिंगर हैं, फेम है, सब हाँ, है, बट उस समय नहीं था। तो अब अब पूरा हम लोग, इंस्टीट्यूट है, अब आप जाके 5 साल पढ़ अब सकते हैं गाना गाना। तो वहां वही पे तो लगता बात है है कि ना, अब हाँ धीरे कि इसको धीरे, पैसा मिलेगा। हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग अब जैसी चीज लोगों ये के, है ना कि अगर 12वीं के बाद इंसान इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस गया, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, हाँ आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, बिट्स हो गया, ऐसा में घुस गया, हाँ, तो लड़का चाहे झक मार ले 4 साल और निकलेगा 12 लाख की जॉब के साथ। बस तो यही तो बात है ना, तो वहां उनको, पे पेरेंट्स चले कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक मेरा जो पेरेंट्स के नीश क्या होता है ना। साथ सीन है ना भाई, कि मुझे उन हाँ, पे वो बात बुरी नहीं लगती कि वो मना करते हैं, क्योंकि भाई वो ऑफ कोर्स दे वांट बेस्ट फॉर यू, बट हम्म, आप उनको समझाओगे, आप उनको अच्छी चीजें दिखाओगे कि नहीं मम्मी इससे भी हाँ, करियर बनता है, दे विल हाँ, सपोर्ट यू एक्चुअली। हाँ, एक बार पैसा आने लग गया देन दे डोंट केयर कहाँ से आ रहा है। भाई बहुत सी हाँ चीज होती है, मतलब लाइक चोरी भुवन चकारी बम मत सबसे करो। बड़ा एग्जांपल है। हाँ, चोरी चकारी मत करो, बट हाँ तुम कमा ले रहे हो ना अपने दम पे, बढ़िया है, सही है। भाई तुम भुवन बम को देखो, उसने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मेरे मम्मी पापा को जब मालूम चला कि मैं ये कर रहा हूँ, कि 18+ हाँ, कॉमेडी, तो ऑफ हाँ, कोर्स उनको अच्छा नहीं लगा। वंस आई गेटिंग ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड, फेम, पैसा, तो हाँ, अब भाई अब उनके सामने वो वीडियो बनाता है, कोई इशू नहीं है। हाँ, वही तो। क्योंकि माँ बाप को कोई इशू नहीं होता, दे जस्ट वांट की बेस्ट फॉर यू, कि तुम्हारी लाइफ हम्म, सिक्योर है। हाँ, तुम अच्छा कर लो जिंदगी में, उनको थोड़ी लेना है हाँ, तुमसे कुछ। बस भाई उन्होंने तो दिया है भाई, वो अब भी देंगे। हाँ, अच्छा, अब जैसे जो फोटोग्राफर्स होते हैं जो अभी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, लेट्स से अ 14-year-old kid, 15-year-old kid और इवन 18-year-old kid लाइक मी, मतलब मैं भी, मुझे भी फोटोग्राफी करनी है, तो व्हाट वुड बी योर टिप्स, टॉप 5 टिप्स फ्रॉम सक्षम मिश्रा। टॉप 5, ओके भाई। करते तो रुकना मत, कि ये नहीं कि पहले 20 शॉट में कि अच्छा शॉट नहीं आया तो रुक जाएंगे, नहीं होता है। ये मतलब कि नहीं होता है, लाइक नेवर गिव अप, बहुत ही जॉन सीना ने बहुत पहले कहा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेवर गिव अप, कि बी लाइक करते रहो, घिसो उसमें अपने आप को। यूट्यूब उठाओ भाई, यूट्यूब से अच्छी एजुकेशन कहीं नहीं मिलेगी तुमको। इफ गंदी सही, चीजें देख सकते हो तो अच्छी भी देखो थोड़ा सा हाँ, सर्च करके, है हाँ, ना भाई। एक वो हो गई, दूसरा एक्सपीरियंस के पीछे भागो, पैसे के नहीं। पैसे आएंगे, ये बड़ी फिल्मों वाली बातें लग रही है, बट ये लाइफ लेसन लेसन है जो मैंने सीखे है लास्ट कुछ हम्म, टाइम में, हाँ ना, कि भाई हाँ, इफ मैं 14 साल का जब था, बादशाह वाला शो होने के बाद मुझे लगता कि नहीं पैसे ही पैसा चाहिए, तो मैं आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाता भाई। हम्म, क्योंकि भाई एक बड़ा क्लाइंट ना तुमको नहीं देगा पैसे, क्योंकि उस तुम्हारा कोई नाम नहीं है, और यहाँ पे बहुत गंदी हम्म, गंदी और अच्छी दोनों चीजें है कि आपका नाम होना जरूरी है, आपके काम का हाँ, नाम। तो आप एक्सपीरियंस जितना कमाओगे उतना लोगों से मिलोगे। हम्म, हाँ, तो नेटवर्क बिल्ड एक्सपीरियंस होगा। ओवर मनी। हाँ, हाँ, उसके बाद
एज अ फोटोग्राफर आपको अपना पीआर बहुत अच्छा रखना है सबसे, सोशल मीडिया में। लाइक यू नीड टू नो पीपल। हाँ। एक बहुत अच्छा एक तुमको मैं बताता हूँ कि किसी भी कॉलेज फेस्ट में घुस जाओ, हाँ, ए टू जी कोई भी परफॉर्म कर दो, जैसे जितवेज आया था आईआईटी, हाँ मैं गया, मेरा कुछ उसमें पार्ट नहीं था, मैं ऑफिशियली कोई मेंबर नहीं था उस इवेंट का, मैं गया एज अ नॉर्मल फोटोग्राफर विद माय डीएसएलआर फॉर माय सेल्फ, मैंने उसकी फोटो खींची, मैंने उसको वो भेजा, मैंने लाइक सोशल मीडिया पे उसको टैग करके डाला, तो इससे मुझे क्या हुआ कि जितवेज के जो थोड़े फैन है उनकी आई बॉल आएगी उस पे, तो आपका ऑडियंस बढ़ेगी, और हो सकता है उसके मैनेजमेंट की भी आ जाए जो उसका सोशल क्या मीडिया मालूम, हैंडल करती यू है। नेवर नो ना भाई। हाँ। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल, एक सिंगर है लीजा मिश्रा, ओके। हाँ। जो बंदी बॉलीवुड में ऐसे आई है, उसने तरीफा एक गाना आया था, उसका एक कवर बनाया अपने लिए, उसको सोशल मीडिया पे डाला, सबको टैग किया, वो बादशाह ने देखा, उसने गाने में काम दे दिया, बादशाह की लास्ट एल्बम में भी वो बंदी है। हाँ, जो उसने टाइटल ट्रैक उसके साथ किया। हाँ, हाँ, तो ऐसे ही होता है कि मतलब ये मत सोचो कि मैं क्यों खींचूं सिर्फ पैसे के लिए, नहीं भाई, अपने लिए खींचो और डालो फोटो भाई, बेहा बन जाओ, टैग करते जाओ, लाइक ये नहीं कि लोग तुमको चिढ़ाएंगे भाई टैग कर रहा है, टेंशन भी नहीं मिला, चिढ़ाने दो भाई, तुम बेहा बन जाओ इस मामले में। ये मैंने सीखा है कि तुम उनको पोक करो भाई, क्योंकि वो बड़े मैनेजमेंट है भाई, वो तुम्हारा देखो काम देखो ये तुम्हारे मैंने मन से बनाया, नहीं देखो। देखेंगे। हाँ, उनको पोक करते रहो कि एक ना एक दिन आई बॉल आएगी उनकी भी भाई उस पे। आ जाएगी। और चौथी चीज सीखो भाई, जैसे खाली टाइम बैठा है तो ये नहीं मूवी सीरीज देखो, सब अच्छा है, बस 1 घंटा निकालो जिसमें नेट पे सीखो नई नई चीजें, वीडियोस देख लो, ट्यूटोरियल देख लो। इंस्टा है भाई, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे पास हजारों फोटोग्राफर है, वरुण आदित्य, ऑडी सर, तुषार महाजन, एक से एक फोटोग्राफर है भाई, उनके प्रोफाइल देखो, वो ट्यूटोरियल डालते हैं भाई। अब फोटोग्राफर में बहुत अच्छी चीज है, वो अपनी फोटो के साथ एक ट्यूटोरियल भी डालता है, क्योंकि उनके इवन अंदर ये कि जो आर्ट फॉर्म आगे ले जाना है। इवन जो यूडेमी जैसा प्लेटफॉर्म है, मैं देख रहा हूँ जैसे 1,000 रुपए के अंदर अंदर कोर्सेज हैं यार भाई शॉन एकेडमी सुनोगे, वो फ्री कोर्स दे रहा है भाई फोटोग्राफर को, फ्री, जस्ट फॉर देयर प्रमोशन, तो करो ना भाई, गंदा कोर्स नहीं, फ्री है तो मतलब गंदा नहीं भाई। मैंने किया वो कोर्स, मतलब 3 दिन 3 क्लासेस की थी, और मुझे हेल्पफुल लगा वो। मेरा थोड़ा स्केड्यूल ऐसा था कि मैंने पूरा कोर्स कंटिन्यू नहीं किया, बट काफी हेल्पफुल है फॉर अ बडिंग फोटोग्राफर। Okay, so let me ask you the final question. What is the ultimate goal of life as of now for you? As of now, to become successful with the peace of mind. ये नहीं कि बहुत ही टेंशन के साथ कि I make it, no, I want to make it with like my peace. I don't want to be the most popular, the most like amazing, नहीं, I just want to be the most happy person, like खुश रहूं अपनी लाइफ में। इससे मुझे वो रफ्तार की एल्बम का गाना याद आ रहा है, पॉपुलर। हाँ, लाइक मुझे ये नहीं चाहिए फेम चाहिए डब्बू रत्तानी जैसा मिलियन फॉलोअर, नहीं नहीं, सबको फेम पसंद है, बट इतना चाहिए जिसमें आप खुश रहो। हाँ, मतलब पैसे ऐसे आ रहे हैं बट ठीक है, मतलब पैसे ऐसा नहीं आए, कि लोग और पीछे पड़े भाई हुए हैं। मेरा अल्टीमेट गोल है कि आई जस्ट वांट टू सी माय फैमिली हैप्पी, लाइक मेरे मम्मी पापा, मेरी आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो मेरे माँ पापा, बड़ी माँ, मेरे सारे भाई बहन, ये सब कुछ है ना, तो बस और कुछ नहीं चाहिए आपको लाइफ में। और आपके दोस्त, क्योंकि उनसे अच्छे इंसान नहीं मिलेंगे, दोस्त ऐसे होते हैं ना भाई, तो बहुत प्यारे लोग होते हैं। So thank you so much for doing this. I hope you enjoyed. हाँ, ऑफ कोर्स आई डिड ब्रो, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड तुम भी बहुत सही कर रहे हो बाबा। लाइक मुझे जब मैं तुम्हारा मैसेज आया, अप्रोच किया तुमने, तो मुझे लगा चलो इलाहाबाद में कोई है पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने भी ये सोचा था पॉडकास्ट वाला सीन, मैंने पोस्टर तक डाला था, एक बंदा था जूनियर मेरा तने, उसके साथ, बट फिर वो प्लान उस हिसाब से नहीं आया, वो चीजें आगे नहीं आ पाई, वरना मैंने सोचा था पॉडकास्ट करने का लोगों का। तो यू आर डूइंग फिनोमिनल, सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Any final words which you'd like to say? I just want to say कि like भाई, हाँ, वन मोर थिंग, वन मेजर पॉइंट आई मिस, कि जलो मत। मैं जलता था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको, मैं अपने आसपास वालों से बहुत जलता था जब कोई मुझसे आगे जा रहा था। फिर Compare मत तुषार करो, yes. महाजन, हाँ, तुषार महाजन से मैंने ये सीखा है कि भाई उन्होंने हमें सिखाया कि इफ कोई इंसान जैसे मुझसे पहले से काम कर रहा है, वो मुझसे बेटर है, तो मुझे जलना नहीं चाहिए, नोट्स लेनी चाहिए भाई, कि वो क्यों इतना Admire अच्छा करना चाहिए। हाँ, एडमायर कर, लाइक इफ मेरे अंदर ये आ गया कि तुषार महाजन इतना अच्छा कैसे, तो हो पाएगा कुछ भाई, नहीं, वो जब भी कुछ नया डालते हैं मैं उनको फोन करता हूँ कि भाई मुझे सिखाओ ये कैसे हुआ, तो अपने अंदर वो लोग सीखने वाला, मतलब ये नहीं एटीट्यूड की सोचना कि नहीं। ये नहीं सोचना कि करता क्या, ये नहीं
ये करता कैसे नहीं ये नहीं लाना है, ये नहीं मेरे ये सोचने पूछने की से ये तुम करता छोटे हो कैसे जाओगे। है। हाँ ये हाँ नहीं ये नहीं नहीं कि सोचे कर कैसे मतलब लेता है, सोचने की ये कर कैसे पूछेंगे तो लेता छोटे हो है, जाएंगे। नहीं भाई, पता मैं कैसे तो अपने करेंगे। भाई मैं मुझसे जूनियर है, मेरे बाद बहुत से लोग स्टार्ट किए, मुझसे बेटर कर रहा हूँ, मैं उनसे भी पूछता हूँ भाई, हाँ कोई बड़ी सीखना बात है। नहीं है। सेकेंडरी पर्सन इज बेटर देन, उसको एक्सेप्ट करो, बट उनसे सीखो यार। लाइक हाँ विद जूनियर्स आई जस्ट वांट टू नेम 2-3 ऑफ देम, क्योंकि बहुत हाँ अच्छा काम कर रहे हैं इलाहाबाद में भी बच्चे। एक हाँ है भाई बैचमेट है मेरा, विदिक कोहली, ओके ही इज डूइंग नाइस। राघव अरोरा का एक बंदा है मुझसे हाँ जूनियर है, वो लेटली उसकी ग्रोथ भाई इतनी प्यारी हुई ना। पहले वो मैं नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा था, धीरे धीरे, बट अब उसकी फोटोज देखता हूँ ना तो दिल हाँ में बहुत अच्छा लगता है कि ये मैं सब मिला हूँ वही उससे। बंदे हैं। हाँ मिला नहीं कि भाई मैंने टिप्स दी, कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग अच्छा करते हैं लाइफ में हाँ भाई। he क्लिक्स गुड फोटोज या बहुत I बहुत अच्छी। अभी लेटली उसके 5-6 पोस्ट से मुझे लग रहा है उसका ग्रोथ ऊपर जा रही है। या बस भाई thank you यही सब। everyone, thank you everyone for listening, I hope you like थैंक it, यू फॉर हैविंग like मी कर दो। भाई, एंड हाँ एवरीवन फॉलो दिस गाय, ये हाँ राइट हियर, या लाइक कर दो, ही इज शेयर कर दो, अमेजिंग। और सारे हैंडल्स मैं डाल दूंगा नीचे सेक्शन के, एंड मेरे भी डाल दूंगा, फॉलो कर देना। हाँ सो थैंक यू थैंक यू भाई। एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।